temple visiting remedies we were doing, and so what I told you कि there is one Jyotirling we covered है ना. One Jyotirling is covered to every Rashi. Technically, you should visit all the 12 Jyotirlings. There is an order for visiting also, by the way. So all the 12 Jyotirlings should be visited, and then there is a particular order. And then I have connected each and every Rashi to a particular Jyotirling also. So if you want to remedy a particular Rashi, you can visit a particular Jyotirling. This visiting can be once a month, once a year, once a fortnight, once a season. Season is 2 months. Once 6 months, once in 6 months, whatever. It seems like whatever is suitable that you can do. This is point number one. Secondarily, because in literature we are fortunate enough to have stotras for different Jyotirling also. As I must have told you that Manas Puja is the highest form of puja. Mental worship is the highest form of worship. The benefits of mental worship is too much. So when you cannot visit a Jyotirling, you can read stotras related to that particular Jyotirling while imagining that particular Jyotirling in your mind, or in front of the idol of Shiva, or in any Shiva temple that you can do. Basically, for 1 year, take from your birthday to next birthday, every day you read this stotra related to this particular Jyotirling every day for 1 year. Very miraculous remedy it will be. And after that, you have your pledge that I will visit this particular Jyotirling every year, every 2 year, every 5 year, every month, whatever XYZ. This will purify the Rashi. The list you already know. What I have added is some stutis, right? So for Vaidyanath, there is Vaidyanath Ashtakam, Vaidyanath Stotram, Vaidyanath Stuti by Ashwini Kumar, and greatness of Vaidyanath Jyotirling, right? 4 stotras I have added. And with this Vaidyanath Stuti by Ashwini Kumar, I have also written a small note that Ashwini Kumar is the god of medicine, Vaidyanath is Shiva in the form of mendicant. So Vaidyanath visiting and Vaidyanath worshipping, two purposes will be there. First of all, remedy of Aries Rashi. Second purpose will be freedom from disease. So for both of these purpose, Vaidyanath Jyotirling you can visit, and when you cannot visit, you can do the Vaidyanath Stuti. Most importantly, as I told you in the previous class also, that in the Tirthatan, when you go to Tirth, you have to sing the glories of God, remember God, do the stotra chanting of the God, etc. In this case of Jyotirling, because there is a stotra for Jyotirling, singing, chanting the stotra related to the Jyotirling is also very good, right? That's the point. Same for Nageshwar, 2 stotras are there. Mallikarjuna, many stotras are there. Right? Cancer is related to Omkareshwaram, and all of this thing up to Pisces, so you know. है ना? ऑर्डर लिखना भूल गया हूँ क्या? पीडीएफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करना मैं भूल गया हूँ, बाकी सब कुछ कर लिया. ठीक है जी. Once in lifetime, one should
try to visit the Jyotirling in order also. So as I told you, basically one should visit all the 12 Jyotirling, and 2 order is there. So as per Puranas, Purana order is for everyone. So as per Puran, first you go to Somnath, then go to Mallikarjun, then go to Mahakal, then Omkareshwaram, Mamleshwaram, Vaidyanath, Bhima Shankar, Rameshwaram, just a second. Then Bhima Shankar, then Rameshwaram, Nageshwaram, Vishwanath, Trambakeshwar, this is the order. For those who follow the Tantric sect, for those who are initiated in any type of Tantric discipline, they should start with Kedarnath, then should go to Omkarnath, then to Vaidyanath, then to Krishneshwar, then to Nageshwar, then to Mahakaleshwar, then Bhima Shankar, then Trambakeshwar, then Vishwanath, then Mallikarjun, then Somanath, lastly Rameshwaram. So 2 orders are there. Puranic order is for everyone, Tantric order is for those who follow any Tantric sect. That basically means those who worship Shiva in the Tantric form is 1 point. Secondarily, those who are Mahavidya worshippers and all of that, Sri Vidya sadhakas, they should follow Tantric order. That works better is what I have came to know, what I have known. Abhi after this comes the Shakti Peeth. This is Hingla Shakti Peeth in Pakistan. It is believed that the forehead of the Sati fell there. So what happens? Shiva is having wife Sati. The father of Sati, Daksh, is arranging for a fire sacrifice. In that fire sacrifice, he have not invited Shiva. So this Sati wants to go there and confronts, and Shiv does not stop him. There are many variations into it, and Shiv does not stop him, Shiv stops him, and Shiv stops her, but she does not stop. Multiple things are there. कभी कभी तो ये भी आ जाती है बात की शिव सती जो है वो शिव के पास खुद आती है, शादी वगैरह नहीं करते दोनों, तो इसकी वजह से प्रेमिका होती है तो इसके लिए शिव रोकते नहीं है, पार्वती पत्नी होती है तो उसको रोकते हैं। तो लाख कथाएं हैं उसके पीछे, है ना। पता नहीं जो लिख रहे हैं इस बात को ये सोच रहे हैं शिव की शादी में हमें तो इनवाइट नहीं किया जी, तो हम तो नहीं मानेंगे, शादी हुई थी, क्या हुआ था, गॉड नोस। लाख कथाएं हैं इसमें, उसको छोड़ देता है। The basic point is Sati self-immolated herself in the fire of the sacrifice of Daksh Prajapati. Shiva became very enraged. He took the corpse of Sati and was roaming all over the world, technically India, was roaming all over India. He was very sad. Vishnu saw this. Vishnu was not able to bear it. So he sends his discus Sudarshan Chakra to cut the body of Sati into multiple pieces. It is believed that those multiple pieces fell at a few places. At those places, this Shakti Peeth are there. So those who follow Devi, they should visit Shakti Peeth of Devi also. Now in Devi Shakti Peeth, you should visit all 52 is not the point. You should try to visit as many as you can. Some classics say there are 52 Shakti Peeth. Some will say there are 108 Shakti Peeth. 4 of them are main. Right, 4 of them are main Shakti Peeth. Others are few. The position of few are also debatable. I will go by the Rashi. And here I have given the photos in the chronological order. The first is Chamundeshwari Temple of Mysore. This one, known by the name of Kronch Peetham. Secondarily is Jwalamukhi Temple of Himachal Pradesh. This is Jwalamukhi of Himachal Pradesh. And the third one is Kiriteshwari Temple of Murshidabad. This is Kiriteshwari Temple of Murshidabad. All 3 of them are connected to Aries Rashi. So Aries Rashi related issue, you can go to this Shakti Peeth. You will go to Shakti Peeth when you are taking Devi as the Isht Devata. When you are taking Shiva as the Isht Devata, you will go to Jyotirling. When you are taking Vishnu as Isht Devata, there is Vishnu temple. When you are taking Ram or Hanuman as Isht Devata, there is a separate set of Ram Hanuman temple. When you are taking Krishna as Isht Devata, there is a separate set of Krishna temple.
when you are taking Ganesh as Ishta Devata, there is separate sect of Ganesh temple. And what I believe, any god is your prime deity, is your Ishta Devata, they fall in the same category. For example, if Bhairav is Ishta Devata, then the Devi temple, Shakti Peeth, and the Shiva temple, Jyotirling, both you will have to visit. Accordingly choose. Taurus is connected to Kali Ghat in Calcutta and Mahalakshmi temple in Kolhapur. Mahalakshmi temple Kolhapur is also known by the name of Shri Peetham, that I have written in bracket. And Kali Ghat of Kolkata is one of the Mool basic Peethas, right? So this basic Peeth has written. Mool Peethas are 4 only, right? Basically, one cannot visit all the 108 Jyotirling in their lifetime, because once again, place is debatable and all of that. The 4 basic Shakti Peeth you should visit. One of that basic Shakti Peeth is Kali Ghat. And the Mool I have written M-U-L-A, Mool, and basic Shakti. So all the 4 basic Shakti Peeth you should visit. It is akin to visiting all the Shakti Peeth. Every devotee should visit. Devotee will be the one who is initiated in Devi worship, either in the Tantric way or in the Vedic way. Either in the Tantric way or into the Vedic way. Whatever. And this is Mahalakshmi Kolhapur, this is Kali Ghat. The photos I have given you for meditation purpose. If you cannot visit, you can meditate, right? As in Manas Puja. Jaimini is connected to Brahmaramba Mallikarjun temple, Sri Salem. It is known as Sri Salem Peeth. It is in the Mallikarjun Jyotirling complex itself. Mahamaya temple is there in the Amarnath temple complex in Kashmir. That is also connected to Jaimini. And this Nalhati temple of West Bengal, that is in Nalhati state, that is also connected to Gemini Rashi. For example, you say 7th Lord is going into Gemini, marriage is not happening. So you can go to Nalhati temple in West Bengal and pray there, marriage will happen. Right now, why I am taking Shakti Peeth? Because marriage, Devi rules Rajas. Devi rules Rajas, marriage, money, wealth, all of these things, Devi is the legals. So in that particular matter, Devi related remedy should be chosen. Otherwise, Devi will be represented by Mars in female Rashi, Moon and Venus. So if Mars in female Rashi, Moon or Venus is creating problem in marriage and these planets are situated in Gemini, then also you have to choose Devi temple. Cancer is connected to Taratarni, which is in Odisha. This particular temple, the front gate. Sorry, this is Taratarni of Odisha. Is connected to Mangala Gauri temple, which is in Gaya. This is Mangala Gauri. This is a small complex inside another complex. Or can visit Visalakshi temple in Varanasi. This is nearby Kashi Vishwanath. This is the main entrance of Visalakshi temple. Leo is connected to Alopi Devi temple in Prayagraj. It is known as Prayag Peetham, and Prabhas Shakti Peeth, which is in Veraval, Gujarat. This is Prabhas Shakti Peeth and this is Alopi temple. Virgo, according to me, is connected to Kamakshi Ammam temple of Kanchipuram, known as Kamkoti Peetham. Libra is connected to Kamakhya, which is in Guwahati, also known as Kamrup Peetham, and this is also Mool Peeth. So Mool Peeth, basic Peeth, everyone should visit. 4 basic Peethas are there. Scorpio is connected to Kumari Ammam temple, which is in Tamil Nadu, and Shonakshi Devi temple, which is in Amarkantak. Sagittarius is connected to Patan Devi, which is in Patna. The name of the city Patna comes from the goddess. Like the name Mumbai comes from the goddess Mumba Devi. And Nartiyang Durga temple of Meghalaya, one can also visit for Sagittarius. This is Nartiyang Durga temple of Meghalaya. Capricorn is connected to Harsiddhi Devi temple of Ujjain. This Harsiddhi was the Ishta Devi of Vikramaditya, in whose court Varamir was the main astrologer. It is just in front of Mahakaleshwar. And Mahamaya temple in Pashupatinath, Nepal, nearby Pashupatinath. Mahamaya temple is there. There you can also visit. This is Pashupatinath temple complex, and this is Harsiddhi Devi temple. Aquarius is connected to Tripur Sundari temple, which is in Agartala, and Brahmari Devi temple, which is in Jalpaiguri, West Bengal. WB is West Bengal abbreviation for the same.
Pisces is connected to Vimala Devi in Jagannath Puri. This is once again Mulapeetham. And Yugadhya Sakti Peeth, which is in Chiragram, West Bengal. Okay. So these places one should visit and visualize about these places. For Ganesh, Aries is connected to Varadvinayak temple in Raigad and Uchipalaya Rockfort temple in Tiruchirappalli. Seems to be quite famous. Rockfort. Taurus is connected to Balachandra Ganesh. It is in Bid and Kottarkara Mahaganapati Kshetram, which is in Kerala. Two places. Gemini is connected to Ganesh temple of Moregaon. This is the first of the Ashtavinayak Shrine. Ashtavinayak Shrine are the 8 Vinayak temples scattered all over Maharashtra, which Ganesha devotee should visit. That Ganesha in the form of Mayureshwar is worshipped here. It is a tantric form of Ganesh, not commonly known. Cancer, Giriratmaj temple in Lenyadri, one should go. This temple is in the over the hill, right? So this is outside of the temple. This is the inside of the temple. Leo, one should visit Ballaleshwar temple and Karapaka Vinayak temple. For Virgo, Vigneshwar temple of Ujar you should visit. Libra, Dundiraj Vinayak of Varanasi you should visit. This is nearby Kashi Vishwanath in the same complex. For Scorpio, Chintamani temple of Pune. For Sagittarius, Ganesh temple of Jalna Aurangabad. For Capricorn, Mahaganapati temple of Pune and Arulmigu Munti Vinayagar temple of Coimbatore. For Aquarius, Siddhi Vinayak temple of either Ahmednagar or Mumbai. Basic Siddhi Vinayak is of Ahmednagar and Mumbai Siddhi Vinayak is the latest one. And lastly, for Pisces, Padmalaya Ganesh temple of Jalgaon you should visit. इसमें महाराष्ट्र के जितने भी टेंपल हैं मुंबई के सिद्धि विनायक को छोड़ के सब अष्ट गणपति श्राइन्स हैं और बाकी तो महाराष्ट्र में बहुत गणेश टेंपल है. इसमें वन मोर सेट आई प्रेफर. See, one Rashi is connected to many gods, है ना. मतलब Aquarius is connected to one Jyotirling, 2-3 Shakti Peeth, 2-3 Ganesh temple, 2-3 Skand temple. For complete remedy of Aquarius, if you visit all of these in 1 year itself, then it is the only Aquarius remedy that you need, and it is for any Rashi. And a list is there. So visiting all of these temples in 1 year itself, if you can do, from one birthday before the next birthday, if one can visit, complete remedy of that Rashi for the coming 15-20 years will be done. And when you go on such a work, many obstacles and hurdles come in between. Be careful. For Vishnu, Aries Pundarikakshan Perumal temple of Trichy, one should go there, and here Vishnu is worshipped in the form of Varaha. ये Varaha मैंने specifically इसलिए लिख दिया है. Varaha is represented by which planet? Rahu. Abhi for Rahu, if Varaha remedy we have to do Varaha mantras, Varaha stotras are first of all difficult to find. Secondarily, it is not generally done at home. Having Varaha idol in home is considered inauspicious. Varaha photo you can have in home, but worshipping the photo without mantra and stotra once again will be very difficult. In that particular scenario, visiting the temples are very good. And this Pundarikakshan Perumal temple, along with doing a remedy for Aries, will also do a remedy for Rahu. So if you have to recommend a remedy for Rahu, visiting this particular temple will be very auspicious. A very strong remedy that you can take. For Taurus, Padmanabha Swami temple of Thiruvananthapuram, Kerala, you should visit. Though Vishnu is worshipped as Vishnu only, but it is a great remedy for Venus. So I have written Parshuram. Because Kerala, Parsuram threw his axe in the sea. By that throwing of that axe, Kerala came out, connected to Parsuram. Gemini Venkateshwar temple of Tirumala Tirupati, one should go. Adi Varaha is worshipped here. So once again, a very good remedy for Rahu. मैंने सुना है कि तिरुपति में विष्णु जी को इतना चंदन लगा देते हैं, शिवलिंग लगता है देखने में.
भिन्नता है भगवान के बीच में। कैंसर इज कनेक्टेड टू बद्रीनाथ टेम्पल, इट इज इन उत्तराखंड। लियो इज कनेक्टेड टू वराह लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल ऑफ विशाखापट्टनम। वराह लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल, वंस अगेन वराह इज वर्शिप्ड हियर, है ना, and Narsim is also worshipped here. So it is a remedy for both Mars and Rahu. Mars Rahu conjunction, if that is happening, Varahalakshmi Narsim temple is the best remedy that you can keep visiting the temple once a year at least, and donating to the temple on a regular basis should be done. Virgo is connected to the Dasavatar temple, which is in UP. This is the temple, worship is not done, but just visiting the temple is. Visiting the temple should be done. In a nearby Vishnu temple, you can do the worship. क्योंकि इस रियून में तो आप क्या वर्शिप करोगे। Libra is connected to Ajigya Manavula Perumal temple. I am not very sure if I am taking the name correctly, but this particular temple in Tiruchirappalli you should visit. Scorpio is connected to Anantapura Lake temple in Kasaragod. Sundar Raja Perumal temple in Tiruchirappalli. Kallalagar temple in Madurai, and Dwarkadish temple in Gujarat. Dwarkadish temple is a remedy for many rashis and many planets. So is Rameshwaram. It's also a remedy for many rashi and many planets. So Rameshwaram and Dwarkadish, so you should try to visit very often. Dwarkadish is in Gujarat. Somanath is in Gujarat. So multiple remedies you can do at once. Such rashis you should note down. Sagittarius is connected to Jagannath temple. Capricorn is connected to Ranganath Swami temple, that is in Srirangam. Aquarius is connected to Kumarnath Swami temple in Srikakulam, and Pisces is connected to Ramanath Swami temple, Rameshwaram. ये वही रामेश्वरम है ज्योतिर्लिंग वाला, सेम है। Now see, Ram and Hanuman, I have mixed the temples, and whether you worship Ram or you worship Hanuman, you are technically worshipping the same. So I have mixed them. For Aries, Ayodhya Ram temple you can visit, under construction. तो भविष्य में आप जाएंगे। कोदंड रामार temple of Tamil Nadu you should visit. Ramchora temple of Vaishali Bihar you should visit. For Taurus, Ragiguda Anjaneya temple of Karnataka you should visit. Mahavir Mandir of Patna you should visit. For Gemini, go on a trip to Chitrakoot. Janaki Kund, Panchamukhi, Hanuman Dhara, Ramghat, all of that is there. They are not temples, they are specific places. So there you should go. For Cancer, Hanumangadi temple in Ayodhya you should visit. Leo, Sita Ramchandra Swami temple of Bhadrachalam you should go. Virgo, Kodandaram temple of Andhra Pradesh you should go. Libra, Kodandaram temple of Karnataka you should go. Scorpio, Jako Hanuman temple of Shimla you should go. Sagittarius, Mundi Kondan Kodandaram temple of Tamil Nadu you should go. Vijay Raghav Perumal temple of Kanchipuram for Capricorn. Vilvadrinath temple of Kerala for Aquarius, and Ramanath Swami temple for Tamil Nadu. ये रामनाथ स्वामी टेम्पल वही है जो विष्णु लिस्ट में और ज्योतिर्लिंग लिस्ट में पहले भी आ चुका है. So रामनाथ स्वामी टेम्पल फॉर Pisces. मजे की बात यह है कि राम नॉर्थ इंडियन गॉड होते हुए भी साउथ इंडिया में ज्यादा रूपों में पूजे जाते हैं, और हनुमान के मंत्र स्तोत्र जो साउथ इंडियन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. नॉर्थ इंडियन तो हनुमान के स्तोत्र वगैरह में तुलसीदास को छोड़ करके और किसी ने काम उतना कुछ खास किया ही नहीं है ना. हनुमान चालीसा वगैरह तुलसीदास की, उसके अलावा कोई वैदिक स्तोत्र हनुमान वगैरह का नॉर्थ इंडियन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल. हनुमान तो चलो साउथ इंडियन थे ही, बट नॉर्थ इंडिया में राम की कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ना. नॉर्थ इंडिया में राम की कुछ बहुत ज्यादा टेम्पल ऐसा सच है नहीं, अयोध्या को छोड़ करके, वो भी निर्माणाधीन ही है. उसके अलावा जनरली साउथ इंडिया में ही. नॉर्थ इंडिया में आपको ऑप्शन में कृष्ण मिलेंगे, तो इसलिए मैंने राम और कृष्ण को सेम रहते हुए भी जो है दोनों को लिस्ट में अलग अलग स्थान दिया हुआ है कि अगर कोई साउथ इंडिया बहुत ऑफर नहीं जा पाएगा तो फिर जो है कि कृष्ण को ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. राम इष्ट देवता होने के बावजूद भी राम और कृष्ण में ज्यादा कुछ भिन्नता नहीं है, अभेद नहीं है. विष्णु के भी जो जनरली टेम्पल है वो साउथ इंडिया में ज्यादा है. नॉर्थ इंडिया में कुछ खास विष्णु का टेम्पल मतलब दिल्ली यूपी में हो ऐसा नहीं है ना. राम के भी कुछ खास टेम्पल है नहीं. तो विष्णु और राम दोनों के नॉर्थ इंडियन सब्स्टिट्यूट के लिए कृष्ण को यूज किया जा सकता है. ये तो बेसिक पॉइंट है. कृष्ण के टेम्पल साउथ इंडिया में बड़े कम है,
है ना, इक्का दुक्का होगा। छोटा मोटा टेम्पल तो है ही, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, पुरानी लेवल पे इंपॉर्टेंस है, किसी ऋषि वगैरह से कनेक्टेड है, स्ट्रांग है इसका पावर, लोगों को रिकमेंड करके और जा करके खुद भी फील किया हुआ है, तो अच्छा महसूस हो रहा है। एरिस मदन मोहन टेम्पल ऑफ राजस्थान is the prime temple, but the idol of Madan Mohan temple was taken from Radha Madan Mohan temple of Vrindavan. So both places you should visit. First you should visit Radha Madan Mohan temple of Vrindavan, then you should visit Madan Mohan temple of Rajasthan, Karoli. Taurus Krishna Birth Complex in Mathura, UP is where you should visit. नाइन्थ हाउस में राहु मार्स होता है, जरूर चले जाना चाहिए, साथ में मस्जिद के भी दर्शन हो जाते, जब तक मस्जिद है तभी तक हो पाएंगे। जैमिनी राधा कृष्ण विवाह स्थली इन मथुरा यू शुड गो। रणछोड़ रणछोड़ दास जी टेम्पल होना चाहिए, नाम थोड़ा डिफरेंट है। रणछोड़ दास जी टेम्पल ऑफ गुजरात यू शुड विजिट। अल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि मथुरा में विवाह स्थली पर आप जाओगे तो बहुत लूट लेंगे आप, तो रणछोड़ दास टेम्पल अल्टरनेट ऑप्शन। कैंसर राधा दामोदर टेम्पल ऑफ वृंदावन एंड श्रीनाथ टेम्पल ऑफ नाथ द्वारा, any of these two temples you should visit. Radha Damodar temple of Vrindavan is a very powerful temple. It was established by Jiva Goswami, a great Krishna devotee. Leo Rashi Nidhivan you should visit. Virgo Guruvayur temple in Kerala you should visit. Only Krishna temple in South India it seems like. Libra Banke Vihari temple of Mathura and Udupi Shri Krishna Mutt of Karnataka you should visit. उडुपी श्री कृष्ण मठ है, मंदिर नहीं है ना, देयर यू शुड विजिट। स्कॉर्पियो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात, राधा वल्लभ टेम्पल ऑफ वृंदावन यू शुड विजिट। फॉर सजिटेरियस पार्थ सारथी टेम्पल ऑफ चेन्नई एंड राधा रमन टेम्पल ऑफ वृंदावन यू शुड विजिट। कैप्रिकॉन गोविंद देव जी टेम्पल ऑफ जयपुर यू शुड विजिट, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट टेम्पल। एक कहानी है, कृष्ण के पोते हो गए हैं ना, बेटे का बेटा, तो उनके पास कृष्ण के कोई बहुत बड़े भक्त आए और उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने तो कृष्ण को देखा है, हम लोगों ने तो नहीं देखा, तो आप हमें कुछ ऐसा मूर्ति फोटो दो जो कृष्ण के जैसा ही हो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो उन्होंने कुछ मूर्तियां बनाई, 3-4 मूर्तियां बनाई, पत्थर की मूर्तियां नहीं थी ऐसा मानते हैं, एमराल्ड वगैरह की मूर्तियां थी ना, जेमस्टोन की मूर्तियां थी, और हर मूर्ति में कृष्ण का एक बॉडी पार्ट मैच करता था। किसी में चेहरा कृष्ण के जैसा था, किसी में पैर कृष्ण के जैसे थे, किसी में कमर कृष्ण के जैसा था, किसी में हाथ कृष्ण के जैसे असली थे। तो चारों मूर्तियों को देखने से पता चलता था। तो ये जो गोविंद देव जो टेम्पल है, यहाँ पर जो चेहरा जो है कृष्ण का वो असली कृष्ण के जैसा है, असली कृष्ण से मिलता है, तो बड़ा ही सुंदर चेहरा है वैसे। Aquarius is connected to Radha Damodar temple of Junagadh. ये this particular idol of this temple is also made by grandson of Krishna. यहाँ पर भी एक particular body part मिलता है ना, chest मिलता है कृष्ण के जैसा। एंड इन दिस टेम्पल नरसिंह मेहता यूज्ड टू टेक बाथ एवरी मॉर्निंग। नरसिंह मेहता वाज अ वेरी ग्रेट पोएट। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, which Mahatma Gandhi used to sing, was written by Narasimha Mehta, who was a great devotee of Krishna himself. And for Pisces, Vithoba temple of Pandharpur you should visit. These temples you should visit. And what is the greatness of temple visiting as a remedy? This I think we have already covered in the previous class, and this PDF particularly I will give it to you. So that is there. इसके अलावा about mantras and stotras we have talked before. कौन सा स्तोत्र किस लिए करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने बात की है, नहीं की है, की है।
हर एक राशि से एक आधा पर्टिकुलर मंत्र भी मैंने जो है कि आपको ऐड करके दे दिया है। तो ये एक हमने छोटा सा पीडीएफ बना लिया है। वैसे ये 980 पेज लंबा है, आपको सारा नहीं दूंगा, थोड़ा इसको भी और एडिट कर दूंगा। First of all, three things are there that you will get. I am not explaining all of that. Mantra connected to every Rashi is there. है ना? We have covered few of these mantras in the previous classes. Few more mantras are also there. Just a second. Last class में गणेश तक कवर किया था ना? Okay. So Lakshmi mantra is there. Aries is connected to Shri Devi. Aries, Om Shri Devya Namah. English Hindi I have written. For Taurus, Om Amritodbhavaya Namah. For Gemini, Om Kamalaya Namah. For Cancer, Om Chandra Shobhanaya Namah. लियो ओम विष्णु पत्निय नमः। वर्गो ओम श्री वैष्णवी देव्य नमः। लिब्रा ओम वरारोहाय नमः। स्कॉर्पियो ओम हरिवल्लभाय नमः। सजिटेरियस ओम शारंगिनी देव्य नमः। कैप्रिकॉन ओम देव देविकाय नमः। एक्वेरियस ओम महालक्ष्मी नमः। एंड पाइसिस ओम लोक सुंदरी देव्य नमः शुड बी चैंटेड। इसमें क्यों कैसे चैंट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, if a planet's dasha is running, you are having financial difficulty, find the rashi of the planet to the related mantra, it will help you. Generally you should choose the mantra as per the planet, in as per the ascendant, as per the moon sign, and as per the rashi where the lord of wealth, second lord, 11th lord is situated in. That's the basic one. अभी इसमें कुछ लोगों का कुछ कमेंट है हल्का फुल्का, तो उसका मैं आपके मन में शंका ना हो इसलिए उत्तर दे देता हूं। तो कुछ एक महानुभाव, क्योंकि वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, एक महानुभाव का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता जी, एक ही नाम भगवान का लेना काफी होता है। तो ऋषियों ने जो सतनाम सहस्त्र नाम लिखे हो मजाक करने के लिए लिखे हुए हैं? एक ही नाम काफी होता है तो अगर एक ही नाम काफी है तो राम को भी बहुत नामों से करते हैं ना, 1000 नाम, 1008 नाम, 300 नाम। इसकी लंबी है स्तुति। 300 नाम को त्रिशती कहते हैं। जनरली तांत्रिक श्री विद्या कुल में जो देवी देवता आते हैं उनकी त्रिशती होती है। जनरली 100 और 108, 108 और 1008 नाम तो कॉमन है। तो अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता है तो ये नाम ऋषियों ने क्यों बनाए, पहली बात है। सेकेंडरली एक्सपीरियंस की बात यह है कि नेम इज अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द डीटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, राम कोई शादी का देवता तो है नहीं, क्या नहीं है ना। तो शादी का देवता कौन सा है? कोई ऐसा देवता है जिसने केवल शादी ही की हो? देवता का गुण थोड़ा ही केवल शादी ही करना। तो ऐसा तो कोई देवता आपको नहीं मिलेगा जिसने केवल शादी ही की हो, शादी के अलावा कुछ ना किया हो। ऐसा देव तो मिलना दुर्लभ है। तो शादी में प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, ये मेरा अगला प्रश्न है। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी चलो देवी का पूजन कर लेंगे, अगर शादी में प्रॉब्लम होगा तो देवी का पूजन करेंगे, ये आप मुझे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्यों देवी का पूजन कर लेंगे? देवी कौन सा शादी हो रखी है भाई? मतलब वैसे तो शिव की पत्नी हम देवी को मानते हैं, मानते हैं ना, शिव की पत्नी है देवी, ऐसा मानते हैं, ऐसा पुरुष तो है। लेकिन शिव की पत्नी टेक्निकली पार्वती या सती है ना। पार्वती और सती के अलावा तो कोई भी शिव की पत्नी एज सच डायरेक्ट तो नहीं है। शक्तिपीठ के साथ भैरव का टेम्पल होता है, लेकिन भैरव एज अ हस्बैंड तो एज सच नहीं है। तो देवी केवल रजस के अधिष्ठात्री होने की वजह से हम उसको शादी के लिए मान रहे हैं, लेकिन एज सच तो काली का कोई हस्बैंड हो या दुर्गा का कोई हस्बैंड हो ऐसी कोई बात नहीं है as such।
तो देवी भी जो है वो भी शादी के लिए नहीं है ना। तो शादी के लिए तो बेसिकली कोई देवता नहीं है। अगर आप सिर्फ वेल्थ की बात करो कि कौन सा देवता वेल्थ देता है, कोई स्पेसिफिक देवता नहीं है जो वेल्थ देता है ना। लक्ष्मी भी स्पेसिफिकली सिर्फ वेल्थ नहीं देती, क्योंकि इसमें फिर झगड़ा भी हो सकता है ना। बोलो लक्ष्मी वेल्थ में कौन सा देती है, इंडियन रुपया देती है कि अमेरिकी डॉलर देती है? फॉरेन एक्सचेंज सर्विस किसके पास है? फिर 10-15 कुतर्क तो बहुत हो सकते हैं ना, कुतर्क तो आप दिन भर करते रह सकते हैं। तो यहां पर अगर कोई राम को मानता है, उदाहरण स्वरूप यह मान लें कि राधा विवाह की देवी है सपोज, इसका मतलब है कि राधा ने सिर्फ विवाह करा और कुछ करा नहीं, ये थोड़ी है। राधा मेरे हिसाब से चैतन्य की देवी, कॉन्शियसनेस की देवी है। किसी को स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस करने में दिक्कत हो रही है और राधा की पूजा करने से बहुत अच्छा रहता है। चलो लेकिन मैरिज के लिए मान लेते हैं, विष्णु का पूजन आप करेंगे तो तुलसी चढ़ाएंगे, देवी का पूजन करेंगे तो तुलसी चढ़ाएंगे क्या? देवी को तुलसी बहुत नापसंद है। जिस घर में तुलसी होता है वहां देवी बिल्कुल वास नहीं करती, उसको वो घर पसंद भी नहीं होता। तो आप क्या बोल लगे, जो गले में कंठ में जिसने तुलसी की माला धारण कर रखी है वैष्णव व्यक्ति ने, उसको या तो शादी करने का हक नहीं है, या अगर उसको हक है और उसको विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो देवी का पूजन करेगा और फिर वो तुलसी की माला पहन के कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या करेंगे, धर्मच्युत करवा देंगे उसको शादी के लिए? ये तो नहीं करवा सकते। तो शादी कोई भी गॉड दे सकता है, उसका मैरिटल फॉर्म निकाल लेंगे। राम कोई शादी का देवता नहीं है, बट ओम सीतापति नमः करके अगर हम सीतापति के रूप में राम को वर्शिप करेंगे तो शादी का देवता भी हो सकता है। तो कृष्ण योगेश्वर भी है ना, योग का ईश्वर भी है। कृष्ण सबसे बढ़िया सखा भी है, कृष्ण लवर भी है। भी आप पे ये बात निर्भर करती है कि आप कृष्ण के किस फॉर्म को इन्वोक करना चाहते हो। कृष्ण आपके लिए वैसे ही हो जाएंगे ना, भगवान की लीला परंपार है, वो भक्त के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, भक्त को जो चाहिए वो दे सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वही काम कृष्ण कर सकता है ना। अगर कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हो गया कि कृष्ण कोई ड्राइवर है। वो तो लीला है ना कृष्ण की, अलग बात। तो एज पर द डिजायर एनी गॉड कैन बी इन्वोक्ड in a particular form when needed. Ram can also come for your protection, Krishna can also come for your protection, Vishnu will also come for your protection, Devi will also come for your protection. This is the basic point behind Raksha Stotra, Kavach, Panjar Stotra, right? Any god will come. So these different names of God are specifically focused at invoking different forms of God for fulfillment of different wishes. That's the basic point. For this particular reason, chanting 108 names of God, 1008 names of God is considered very auspicious and very powerful. Point one. ठीक है, पहली बात। Secondarily, there are some shorter forms also, 16 names of God, 17 names of God, 20 names of God. All of these are also there. The basic point is if you cannot read 108 or 1008 names, in that scenario, only taking 11, 12, 13, 14, whatever number of name is there, if you take all of these names together in the morning, your day will be good. Your day will be good, auspiciousness will be there, and all the result, right? All the good results will be there, and basically you are invoking God in all the forms. So whatever is needed, that will be done. ठीक है। मानिए कि सुबह सुबह आपने भगवान को धन के लिए पुकारा, लेकिन दोपहर में आपके सामने कोई विषैला जंतु आके खड़ा हो गया, तो फिर तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे ना कि हमने तो भगवान को रक्षा के लिए पुकारा ही नहीं, तो हम क्या मर जाएंगे आज? ऐसा नहीं है ना, एक ही बार में पुकार लिया हर रूप में, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा प्रभु जो है कि आकर के काम अपना कर लेगा। ये बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके। Then for Saraswati, different mantras are connected to different Rashi. Om Am Bharatya Namah Aries. Om Saraswatya Namah Taurus. Om Shardaya Namah Gemini.
ओम हंसवाहिन्ये नमः कैंसर। ओम जगति ख्याताय नमः लियो। ओम वाणीश्वर्य नमः वर्गो। ओम कौमार्य नमः लिब्रा। ओम ब्रह्मचारिण्य नमः स्कॉर्पियो। ओम बुद्धिदात्रिय नमः सेजिटेरियस। ओम वरदायिन्य नमः कैप्रिकॉन। ओम शुद्र घंटाय नमः एक्वेरियस एंड ओम भुवनेश्वरीय नमः पाइसेस। और सरस्वती। राधा आई हैव कनेक्टेड टू नक्षत्र primarily. Radha, I told you why Radha is used. Radha gives you consciousness, quick progress in spiritual path. Along with that, in the case of depression, etc., also Radha is very helpful, very gracious, because Radha is Mahamaya. So freeing one from the veil of Mahamaya, Radha does best. Chitra Nakshatra, Radha Devya Namah. Swati Rasesari Devya Namah. Vishakha Ramyaya Namah, and etc. etc. This is completely written that you can read English, Hindi, both is there. मेरा काम आपको इंट्रोड्यूस कराने का है, सो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। खैर इसको छोड़ते हैं। इसके बाद राधा के मंत्राज है बड़े सारे, स्पेसिफिकली आई हैव रिटन बिलो, है ना। 4000 जब कलयुग में करने हैं, ये मैंने लिख दिया है। मंत्र है करन्यास हृदयादिन्यास, आपने कैसे करना है आप टेक्निकली जानते ही हो, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगले पेज पे है। राधा के बड़े सारे स्तोत्र हैं। कल्याणम कब पढ़ना है ये लिख दिया है मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां ब्रैकेट में लिख दिया है, जो मुझे लग रहा है मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये 985 पेज ओवर 2 महीने में बनाया था, मैं भूल भी गया कुछ बातें पहले एक्सप्लेन की, दोबारा एक्सप्लेन कर दी है। तो कहीं कहीं पर तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्पेशल यूजेस। बाकी कवच का क्या यूज होता है, और कृपा कटाक्ष स्तोत्र का, कृपा कटाक्ष में तो खैर लिख दिया मैंने, क्योंकि कृपा कटाक्ष केवल राधा का ही होता है, बाकी गॉड्स का नहीं होता जनरली, तो वहां लिख दिया है। कवच का क्या यूज है और स्तोत्र का क्या यूज है, ये आप ऑलरेडी जानते ही हो, पहले समझाया था, वो लिखा नहीं है। इस स्तोत्र के साथ जो खासियत है वो मैंने और ब्रैकेट डाल के यहाँ पर लिख दिया है। तो स्तोत्र हैं सारे अलग अलग गॉडेसेस के हैं, गॉडेस वाला पार्ट में हटा दूंगा। ये जो है कि दिस 12 नेम्स ऑफ विष्णु फॉर डिफरेंट राशि। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल कैन डू इट वेल, है ना। फॉर एरीज ओम हरिओम, टॉरस ओम केशवाय नमः, जेमिनी ओम पद्मनाभाय नमः, कैंसर श्री वामनाय, लियो श्री वेद गर्भाय नमः, एक्सेट्रा। दिस यू कैन चैंट द नेम ऑफ विष्णु कनेक्टेड टू एवरी नक्षत्र, दिस यू शुड चैंट। विष्णु वर्शिप यू डू फॉर प्रिजर्वेंस, गुड हेल्थ, स्पिरिचुअल मेरिट, गेटिंग द ग्रेस ऑफ विष्णु, है ना। विष्णु इज द लॉर्ड ऑफ ग्रेस। आगे विष्णु के स्तोत्र हैं सारे, ब्रैकेट में लिख दिया है, जो करना है। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विष्णु आल्सो, है ना। सत्यनारायण इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, चार स्तोत्र सत्यनारायण के हैं। सुदर्शन की अलग से पूजा होती है, क्यों पूजा होती है, एक बेसिक मंत्र भी दिया हुआ है ना। एनिमीज का डिस्ट्रक्शन, कृत्या के लिए मंत्र है, इंचेंटमेंट के लिए, वेल्थ के लिए, अट्रैक्शन के लिए। इसमें लक्ष्मी में कम से कम 50-55 मंत्र दिए हुए मैंने, ठीक है, दैट ऑल यू कैन यूज। सुदर्शन चक्र का माला मंत्र है, सुदर्शन के कवच एक्सेट्रा है। और क्यों सुदर्शन का पूजा करना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन का पूजा सब जनरली इंट्रोड्यूस नहीं हो, तो सुदर्शन का पूजा क्यों करना चाहिए वो भी मैंने एक पैराग्राफ, जहां जहां मुझे लगा है सुटेबल कि आपको नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, वहां वहां मैंने उस पार्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। हैग्रीव स्पेशल फॉर्म है विष्णु के, तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ डाल दिया भैया कि क्यों हैग्रीव की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। शिव का हर राशि के हिसाब से सेपरेट मंत्र दे दिया है ना। किसी किसी राशि में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, किसी किसी राशि में एक ही ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन जहां पर होंगे वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। नक्षत्र के हिसाब से क्या नाम शिव का लेना चाहिए वो मैंने इधर लिख दिया है। पंचाक्षरी मंत्र की क्या महानता, ग्रेटनेस है, वो मैंने 3-4 पेज में ठीक से लिखी हुई है। फिर अब पंचाक्षरी मंत्र के बारे में कुछ बातें।
शिव के जो है कि मंत्र है, रुद्र सूक्तम वगैरह है, वो सारा का सारा लिखा हुआ है इसमें ना। शरभ वगैरह के मंत्र भी हैं, शरभ की पूजा क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या पर्पस है, ऑल ऑफ दैट आई हैव रिटन। ठीक है, ये आप ठीक से पढ़ सकते हो, तो ये आप पढ़ लेना। सर सिद्धि के मंत्र किस प्लैनेट या किस राशि से रिलेटेड होते हैं सर? मैडम क्या फिर से या रिपीट करेंगे आप प्लीज। शिव जी के मंत्र हमने कौन सा प्लैनेट या सन या मैम फिर देखिए, सन भी शिव को रिप्रेजेंट करता है, हाँ केतु भी जी। करता है, सैटर्न ओके। के लिए भी लेना चाहिए, सन सैटर्न केतु, तीनों में से कोई भी आप ले सकते ओके और सर राशियां भी इनकी लेनी है? हैं। हाँ जी। ठीक है सर। शिव जनरली कल्याण का देवता है, लिखा होगा मैंने। शिव जनरली कल्याण का देवता है, तो आपको अगर लग रहा है कि कल्याण मेरे जीवन में नहीं हो रहा, तो भी आप जो है कि शिव का स्तुति करेंगे। मतलब कोई दशा हो रही है, दशा है, दशा में आपको लग रहा है कल्याण नहीं हो पा रहा, मेरा बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसमें आप उस राशि से जो शिव का जो नाम कनेक्टेड है, या उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में प्लैनेट है, उस नक्षत्र से जो शिव का नाम कनेक्टेड है, वो आप चैंट करेंगे, तो आपको अच्छा कल्याण हो। है ना, कल्याण का डेफिनेशन जो शुरुआत में जो पंचाक्षरी में डेफिनेशन दिया है, उसमें कल्याण का भी लंबा डेफिनेशन दिया हुआ है। कल्याण क्या होता है। कार्तिकेय के लिए भी जो है कि हर नक्षत्र के हिसाब से नाम का सेट है। कार्तिकेय जनरली जो है कि मार्स के लिए कार्तिकेय का आप वर्शिप करेंगे। कार्तिकेय के बहुत सारे मंत्र भी हैं इसमें। सर जैसे सपोज करो कि सेवंथ हाउस में एग्जॉल्टेड सैटर्न आ गया, तो हमने शिव जी का ही पर्टिकुलरली देखना है या फिर कोई उसको एस्पेक्ट उसको नहीं मैडम देखो, और नहीं ज्यादा मेल्फिक कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, एनालिसिस हम ऐसे थोड़ा ही करते हैं। एनालिसिस हम कैसे करते हैं, एनालिसिस में हम सब देखते हैं ना, वीनस कहाँ गया, लॉर्ड कहाँ हाँ जी हाँ गया, जी लॉर्ड को हाँ कौन जी। देख रहा है, तो पूरा आप एनालिसिस करोगे। उसमें जो ओके। प्लैनेट निकलेगा खराब, ओके। उससे रिलेटेड डीटी का जो है कि आप उपाय दोगे। एनालिसिस आपको पूरा करना पड़ेगा। और उपाय में भी एक बात और मैं बता दे रहा हूं भैया, कोई चमत्कार नहीं है। तीन चीजें होनी चाहिए, फिर से समझा देता हूं। अगर किसी का पति उसको शराब पी के मारता पीटता है, तो पहले पति को शराब पीना बंद करना पड़ेगा। अगर आप ही पति हैं, पहले शराब पीना बंद करिए। शराब पीना बंद करने के बाद हो सकता है पत्नी इस बात को लेकर नाराज होगी, तुमने शराब पी के मुझे इतना मारा पीटा, उससे वर्बली माफी मांगिए। ठीक है, उसके बाद शराब पीना छोड़ने के बाद वर्बली बहुत माफी मांगने के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता, तब मंत्र या स्तोत्र करने से लाभ होगा। भगवान कोई जादू की छड़ी नहीं है। खास करके जब कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पत्नी हैं ऑन द अदर हैंड, और उसमें आपका पति आपको दारू पी करके मारता पीटता है, तो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता होता है, उसके साथ रहना नहीं चाहिए। पति को छोड़िए, तलाक लीजिए, सुखी रहिए। क्योंकि जब तक आप उसको छोड़ के तलाक नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कोई देवी देवता आके आपको बचाया है, बचा ही नहीं सके। ठीक है, जो धर्म का विरुद्ध आचरण करता है उसका साथ छोड़ दीजिए। और अगर आप धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो धर्म के विरुद्ध आचरण करना पहले छोड़िए, उसके बाद उपाय से काम होने का जो है कि आप कुछ सोचेंगे। पति शराब पी करके मारे पीटे ना, इससे बचने के लिए आपको अच्छे मुहूर्त में शादी करनी चाहिए, अच्छी मैच मेकिंग के साथ शादी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका सेवंथ हाउस खराब है, तो ये मान के चलें कि मारपीट थोड़ा मोड़ा तो होगा ही। उससे बचने के लिए कृपया शादी ना करें। हो जाएगा बाद में, उसके बाद भगवान के सर पे दर पे सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपने बुरे कर्म किए, उसका फल आप भुगत रहे हो, किसी की आपसे कोई दुश्मनी है नहीं। ये बात सीधी है। ठीक है, भगवान किसी चीज का दोषी नहीं है। आजकल तो इंसान भगवान को भी दोषी बना के बैठ गया है, जो कि किसी का दोषी नहीं है उसको है। बाकी कार्तिकेय के सारे स्तोत्र हैं, सो आप पढ़ लेंगे, देख सकते हैं, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस में मैंने बता दी, कार्तिकेय का जो षडानन जो रूप है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो समझा दिया मैंने यहाँ पे। कार्तिकेय के अलग अलग फेस के लिए अलग अलग मेडिटेशन होता है। और गुरु के लिए स्पेसिफिकली मैंने एक लिस्ट ऑफ स्तोत्रास दिए हुए हैं। इसमें भी रमन महर्षि के लिए अलग, चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग, रामकृष्ण परमहंस के लिए अलग, विवेकानंद के लिए अलग, शारदा देवी के लिए अलग, और अलग अलग प्रकार के जो पॉपुलर, जिनको मैं अच्छा गुरु मानता हूँ उनके लिए मैंने अलग स्तोत्र का कॉम्पिलेशन दे दिया है। जिनको मैं अच्छा गुरु नहीं मानता उनके लिए मैंने नहीं दिया है। ठीक है जी, साईं बाबा को भी इंक्लूड कर दिया मैंने। अगर किसी को कभी कभी इंटर रिलीजियस प्यार भी हो जाता है लोगों को, मैंने पर्सनली देखा है कि हिंदू किसी मुस्लिम से
प्यार करता है, या मुस्लिम किसी हिंदू से प्यार कर लेते हैं, वैसे में शिरडी साईं बाबा उस मामले में बहुत काम करते हैं इंटररिलीजियस चीजों में, है ना। बाकी सिख को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं हिंदू ही मानता हूँ, और क्रिश्चियन को मैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मुस्लिम ही मानता हूँ। ठीक है जी, ये बातें होगी सारी। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और इसमें एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण से आपको बात सारी समझ में आ जाएगी करते कैसे। बाकी मंत्र पे आप लोग मुझे बताओगे कि मैं सोच रहा हूँ मंत्र पे कुछ कोर्स करना चाहिए, मन में विचार है, क्योंकि गोपनीय ज्ञान है तो ऐसे दिया नहीं जाना चाहिए, है ना, आप पता ही है आपको ये सारी बातें तो। बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर अच्छे अच्छे बच्चे जिनको मैं चाहता हूँ कि उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं करूंगा, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि अगर मैं मंत्र पे कोर्स करूंगा तो क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आप मतलब कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। ये तो एक बात होगी। एक उदाहरण देता हूँ, बाधा वाला सेशन जो है कि वो हमने किया है और आपको अवेलेबल भी है बाधा वाला सेशन। दो तीन चीजें हैं। पहले क्या करते हैं, हॉरोस्कोप का करते हैं जी एनालिसिस। उदाहरण मैंने आपको दे दिया था, एक और उदाहरण मानिए देता हूं। सपोज करिए, प्लीज पर्सनल मैसेज आप लोग मुझे करेंगे तो मैं नाम भी याद रख पाऊंगा किस किस को करना है। मानिए इसको शादी से दिक्कत है, इसको शादी में दिक्कत है, सपोज करिए। इसके लिए कुछ हमें उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको उपाय की लंबी सूची बता दी है। इस लंबी सूची में प्राइम मंत्र जाप, स्तोत्र पाठन और मंदिर का विजिटिंग है। मंत्र जाप आपको डेली करना चाहिए, स्तोत्र पाठन डेली करना चाहिए, ना मंत्र जाप अकेले होगा ना स्तोत्र पाठन अकेले होगा, मंत्र जाप स्तोत्र पाठन साथ मिलके होंगे। ओवर द टाइम आपको पीरियोडिकली मंदिर भी जाना है। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया, स्पिरिचुअल रेमेडी है जिससे कर्म कटता है और अच्छा फल होता है ना। इसके अलावा इससे इतर जेमस्टोन वगैरह का रेमेडी अगर यहाँ पर एप्लीकेबल है तो जेमस्टोन रिलेटेड रेमेडी वगैरह आप करेंगे। बाकी जो उपवास वगैरह से रिलेटेड रेमेडी है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये सारे सब्स्टिट्यूट है। टेक्निकली उपवास रिलेटेड रेमेडी मंदिर जाने के साथ, मंत्र जाप स्तोत्र जाप के साथ किया जा सकता है। जितनी ज्यादा रेमेडी आप साथ में करेंगे इफेक्ट बढ़ने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। तो मैक्सिमम रेमेडी को साथ में कीजिए। सेकेंडरली सब्स्टिट्यूट का भी ऑप्शन है, अगर कोई कहता है कि मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता जी, स्तोत्र पाठ बड़ा स्तोत्र नहीं पढ़ सकता, बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकता, तो वहां पर मेरी कोशिश होती है केवल राशि रिलेटेड मंत्र ही व्यक्ति को दिए जाए। वो तो जो है कि मतलब इंग्लिश बोलने वाले जो है वो भी पढ़ लेंगे, जो हिंदी ठीक से नहीं समझते। उसमें भी कोई हो कि भाई मैं तो जी मंत्र जाप स्तोत्र पाठ बिल्कुल नहीं कर सकता, तो उसको फिर केवल उपवास करने वाली बातें का उपाय दें। अगर शुगर का मरीज और ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो फिर उसको केवल टेम्पल विजिटिंग कह सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आदमी कितना कर सकता है उसके हिसाब से जो है कि रिकमेंड करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में जेमस्टोन भी पहना दो, उपवास ऑप्शनल है। अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा उपभोग की वजह से प्रॉब्लम है तो उपवास कहना चाहिए, वरना नहीं कहना चाहिए। जनरली मैं उपवास रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, जेमस्टोन पहना दो, मंदिर विजिट करने के लिए कह दो, साथ में मंत्र दे दो, साथ में स्तोत्र दे दो, और इसको आदमी ठीक से हिसाब से करता रहे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना। मतलब क्या कहते हैं, मरणासन व्यक्ति भी जो है कि अगर उसको मरने में टाइम है तो हफ्ते भर में बिस्तर से खड़ा हो सकता है। डेवोशन बढ़िया होना चाहिए। बट सबसे पहला सबसे जरूरी पॉइंट है एनालिसिस का। तीन बातें मैंने आपको पहले बता दी, सो मैं आपको बता देता हूं। अगर बात अगर हमारे अप्रोच में गड़बड़ है तो हम पहले अपना अप्रोच ठीक करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, हमने गलती की है तो माफी मांगेंगे, लास्ट में उपाय करेंगे। अगर दूसरे व्यक्ति के अप्रोच में गड़बड़ है, कुछ अन्याय की डिमांड कर रहा है, तो फिर उसके हिसाब, अगर आपका शत्रु है तो आपको कोर्ट केस वगैरह करना चाहिए, है ना। तो जो भी है राइट अप्रोच के साथ आप इसको डील करेंगे। लास्ट स्टेप होगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेमेडी। इसमें वो शराब वाला एग्जांपल जो दिया वो इसमें हम लगा लेते हैं। अब इस कुंडली में क्या हो रहा है, 7th हाउस में वीनस बैठा है, मार्स बैठा है, दो प्लेनेट है। सैटर्न की इस पे दृष्टि है, जुपिटर की भी इस पे दृष्टि है, राहु की भी इस पे दृष्टि है।
ठीक है जी। वीनस 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, वीनस दे रहा है लिबिडो। मार्स 10th और 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 3rd हाउस का लॉर्ड होने से मार्स दे रहा है स्ट्रगल। सैटर्न ठीक ठाक है ना, 12th हाउस का लॉर्ड है और लगन का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड होने से सेपरेशन देगा। और वैसे मिजरी का कारक है तो मिजरी दे सकता है। मार्स फाइट का कारक है तो मार्स फाइट देगा। जुपिटर तो ठीक ठाक ही प्लेनेट है ना, 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, वेल्थ उसने देना है। अदरवाइज अच्छा प्लेनेट। राहु जो है कि चीटिंग जरूर दे सकता है, तो राहु देगा चीटिंग। ये सारे रिजल्ट इसने देने हैं। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है, आप पर्सन अच्छी दशा में शादी करें, अच्छे मुहूर्त में शादी करें, और इस पूरे प्रोसेस में अच्छा मैच मेकिंग भी हो। ये सब करने से ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है कि खत्म हो जाएगी। नेटिव तो कम से कम फेस नहीं करेगा, है ना। मैच मेकिंग नेटिव के लिए अच्छी है, दशा नेटिव की बढ़िया चल रही थी, मुहूर्त भी नेटिव के लिए फेवरेबल था। हम लोगों को ये लगता है कि मुहूर्त अच्छा, मुहूर्त दोनों के लिए अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं, किसी के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ये राज की बात है। तो अब ये जो चीटिंग है, नेटिव ने अच्छी दशा में शादी की, अच्छे मुहूर्त में शादी की, मैच मेकिंग बढ़िया है, चीटिंग नेटिव के साथ तो कोई नहीं कर पाएगा, नेटिव जरूर कर सकता है, नेटिव फ्री। नेटिव करेगा तो फिर बुरे कर्म करेगा, चीटिंग करने की वजह से फिर इसको जो है कि बाद में जो भी प्रॉब्लम होगी इस लाइफ में, अगले लाइफ में, उसके लिए कहीं पर भी मंदिर में जाकर नाक रगड़ता रहे, हो इसको कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर अपनी मर्जी से करेगा जो करे। अपनी मर्जी से गुनाह कमिट कर लेने पर फिर आप जो है कि प्रॉब्लम में फंसते हैं। ये बात तो ठीक हो गया। अब इसमें से ये सारी चीजें ठीक मिल पाना असंभव है, सारी चीजें ठीक जनरली हो नहीं पाती। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2, मेरा जो अप्रोच रहता है, हम पहले देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझना चाहेंगे। प्रॉब्लम यही 5-6 प्रॉब्लम हो सकती हैं, 2 2 4 तो 6 प्रॉब्लम्स हैं, यही 6 प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर मुझे व्यक्ति कहता है कि सर मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं, सैटर्न सेपरेशन, सैटर्न दे रहा है डिले, सैटर्न देगा डिले, सैटर्न का रेमेडी करो। सैटर्न के लिए जो है कि शिव का रेमेडी आप कर सकते हो, ये बात हो गया नंबर 1। ठीक है, तो शिव का रेमेडी आप जो है कि सैटर्न के लिए करो। दूसरा क्या है कि विवाह के लिए स्वयंवरा पार्वती मंत्र कोई भी कर सकता है, स्त्री जो है कात्यायनी का पूजा कर सकती है, पुरुष जो है कि वो पत्नी मनोरमा देवी का जाप कर सकता है, वो ये कर सकते हैं। शिव का पूजन बेसिकली करना चाहिए। अगर डिले का प्रॉब्लम है, अगर सेपरेशन हो रहा है मैरिज में, मैच मेकिंग ठीक नहीं है, तो सेपरेशन होके रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। डिवोर्स का अगर योग है, 8th लॉर्ड खराब नवांश में गया हुआ है, तो भी सेपरेशन होके रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। उस मामले में सेपरेशन का रेमेडी देना कोई फायदा नहीं। अगर मिजरी आ रही है तो भी आप सैटर्न का रेमेडी दोगे, ठीक होगा। अगर लिबिडो रिलेटेड इश्यू नेटिव को है, या फिर लाइफ पार्टनर को है, सपोज करिए, क्योंकि 7th हाउस में वीनस आपको भी लिबिडो दे सकता है, लाइफ पार्टनर को भी हाई लिबिडो हो सकता है, फिर लाइफ पार्टनर भी कर सकता है, उस मामले में आप वीनस का रेमेडी करेंगे। वीनस यहां पर सात्विक राशि में वीनस अन्नपूर्णा होता है, अन्नपूर्णा के बहुत सारे स्तोत्र मैं आपको देके बैठा हूं, तो अन्नपूर्णा का कोई भी स्तोत्र आप करेंगे। अदरवाइज लक्ष्मी का वर्शिप आप कर सकते हैं, और काली या दुर्गा का वर्शिप भी आप कर सकते हैं, कोई भी फीमेल गॉडेस ले सकते हैं, उसका वर्शिप आप करके दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में क्योंकि 7th हाउस में बैठा है, दकारादि दुर्गा सहस्त्रनाम शादी के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने नोट में ऐड भी किया होगा, वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अन्नपूर्णा का कोई भी स्तोत्र दे दो, लक्ष्मी का एक मंत्र लियो के हिसाब से उठा करके आप इसको दे दो, वो ये चैंट करता रहेगा, इसका लिबिडो ठीक ठीक कंट्रोल में आ जाए। अगर मेल है तो लिबिडो कंट्रोल करने के लिए मेल डीटी का मंत्र देना चाहिए, फीमेल है तो लिबिडो कंट्रोल करने के लिए फीमेल डीटी का मंत्र देना चाहिए। मेल को लिबिडो कंट्रोल करने के लिए फीमेल डीटी का मंत्र देने से फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फीमेल डीटी का मंत्र करके लिबिडो को कंट्रोल वही मेल कर पाएगा जो ऑलरेडी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे हो, जो हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे होगा उसको ये प्रॉब्लम होगी नहीं।
बात हो गई। अगर स्ट्रगल है मैरिज में या मैरिज में फाइट्स हो रहे हैं तो मार्स से रिलेटेड आपको रेमेडी देना है। मार्स में आप सुब्रमण्य का रेमेडी दे सकते हो, भैरव का आप रेमेडी दे सकते हो, हनुमान का आप रेमेडी दे सकते हो। अब इसमें दो बातें हैं, फाइट कौन कर रहा है? लाइफ पार्टनर आपसे फाइट कर रहा है, आपको प्रॉब्लम है, आप कवच दोगे, बिकॉज कवच इज फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है ना? अगर व्यक्ति खुद ही फाइट कर रहा है तो स्तुति देंगे। स्तुति, वंदना, स्तवराज जो भी है सब स्तुति के ही फॉर्म्स है। स्तुति में क्या है, आप गॉड को प्लीज कर रहे हो, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मैं बहुत निकृष्ट दुष्ट हूं, मुझे माफ करो, अपनी शरण में लो, मुझ पे कृपा करो। ये स्तुति है। नेटिव खुद फाइट कर रहा है तो आप उसको स्तुति देंगे, उसका मन शांत होगा। दूसरा व्यक्ति नेटिव से फाइट कर रहा है तो आप उसको कवच देंगे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। प्रोटेक्टेड रहने से क्या है कि जीवन साथी झगड़ा कर रहा है, यहाँ पर क्योंकि सेवंथ हाउस का केस है, माने जीवन साथी झगड़ा कर रहा है तो वो झगड़े से बचेगा, झगड़ा ज्यादा एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन इस मामले में वन सेकेंड पहले बुद्धि विद्या से काम लेना है। अगर आपकी गलती की वजह से आपसे झगड़ा कर रहा है तो गलती करना बंद करिए, माफी मांगिए। अकॉर्डिंगली जो है कि आपको रेमेडी सजेस्ट करनी चाहिए। रेमेडी सजेस्ट करने में वन सेकेंड मैं मानता हूं कि मंत्र भी करे आदमी, मंत्र ऑप्शनल है। जो मंत्र करना चाहता है, जिसको मंत्र करने में रुचि है, उसको मंत्र करना चाहिए। स्तोत्र करे, स्तोत्र हर व्यक्ति करे। स्तोत्र तो सबको करना ही करना चाहिए। मंत्र में उच्चारण ठीक होना चाहिए, इनिशिएशन हो तो बहुत बढ़िया, प्रोसीजर वगैरह ठीक से पता हो, कुछ चीजें होती है। स्तोत्र सबको करना चाहिए। ओकेजनल आदमी को टेंपल विजिट करना चाहिए। अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं पहले कोई पाप कर चुका हूं, उदाहरण स्वरूप शादी के पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने बहुत मारा पीटा, अब उसके परिणाम स्वरूप मुझे अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फास्टिंग भी करना चाहिए साथ में। ये फास्टिंग आपका रिपेंटेंस है ना? साथ में आपको फास्टिंग भी करना चाहिए। इसके अलावा मंगल का यहाँ पर हम जेमस्टोन पहन नहीं सकते, तो जेमस्टोन हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा। और अदर रेमेडीज भी जो है उसमें से जो सूटेबल लगे वो आप एक्स्ट्रा रिकमेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम आदमी करेगा तो अच्छा फल उसको रहेगा। हाँ जी, हाँ जी आशीष जी, यही यही वाला पॉइंट मैं आपको बेसिकली अभी कहने वाला। अब क्या है, इस हॉरोस्कोप में, इस कुंडली में समझिए कि एक हाल फिलहाल कल परसों का केस है। एक महिला थी, है, उसको थोड़ा सा बाधा कंसल्टेशन हम उसका कर रहे थे, तो उसका हमने जो हॉरोस्कोप देखा उसमें कुछ प्लैनेट बाधक निकल के आते हैं, है ना? बाधक निकल के आएंगे, बाधक से बहुत सारे योग बनेंगे। वो योग आपको पता है, बाधक पे करूंगा कुछ, अभी तो नहीं, बाद में करेंगे, कुछ और डिटेल पढ़ेंगे बाधक। तो बाधा से रिलेटेड कुछ जो है कि उसको प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं। इसको हमने कैसे एनालाइज करना है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। बाधक दूसरा पॉइंट हो गया एनालिसिस का, है ना? जैसे एक्वेरियस, इसको मानिए एक्वेरियस राशि, लिब्रा एंड कैंसर इस बाधक। ठीक है जी, लिब्रा एंड कैंसर इस बाधक। लिब्रा देर इज केतु, लॉर्ड ऑफ लिब्रा गोes टू सेवंथ हाउस। कैंसर देर इज मर्करी, एट्थ लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ कैंसर गोes टू फिफ्थ हाउस। यहां पर 5-7 प्रॉब्लम बनेगी। आप सारे योग देखोगे, मैं आपको पहले बता देता हूं, तो इसको दृष्टि बाधा है। तीसरा इसको विचार है। उसके बाद इसको कर्ज ऑफ रिलेटिव है। 3 इसको प्रॉब्लम है। ठीक है,
इसके अलावा एक लिस्ट दे रखा था आपको, मेल को क्या नहीं करना चाहिए, फीमेल को क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप एक बार पूछताछ कर लेंगे कि कभी भाई बाल खोल करके आधी रात को सेंट लगा करके मैदान में तो नहीं घूम रहे थे आप। अगर घूम रहे थे तो उसके बाद क्या किया, वो आप क्वेश्चनर है आपका, वो आप क्वेश्चनर कर लेंगे। इसको टेक्निकली 4 प्रॉब्लम है। दृष्टि बाधा इसको क्यों है, दृष्टि बाधा इसको इसलिए है क्योंकि बाधक लग्न को देखता है वीनस। अभिचार इसको क्यों है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठा है, इसलिए इसको अभिचार है। उससे 311 में बाधक हाउस एंड बाधक लॉर्ड आता है, 11th में मून आता है महाबाधक, और 3rd हाउस में बाधक हाउस ही आता है। कर्ज ऑफ रिलेटिव इसको इसलिए है क्योंकि मरकरी 6ठे भाव में बैठा हुआ है। ठीक है जी। बाधक है कौन कौन, बाधक इसमें वीनस बाधक है, दूसरा बाधक है मून, लेकिन मून कोई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट नहीं कर रहा, लग्नेश है इसमें सैटर्न। बचाएगा कौन, लग्नेश बचाएगा। सैटर्न शिव को इंडिकेट करना चाहिए, सैटर्न हनुमान को इंडिकेट करना चाहिए, सैटर्न भैरव को भी इंडिकेट करना चाहिए। शिव, हनुमान और भैरव किसी में से भी सैटर्न इंडिकेट कर सकता है। भैरव का मंत्र मैं इसको बिल्कुल नहीं दूंगा, सन मून साथ में बहुत डर लगेगा इसको, हृदय उसका वैसे भी बहुत कमजोर है। हनुमान का मंत्र मैं इसको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 7th हाउस में वीनस बैठा है, तो ये हनुमान का मंत्र क्या ही कर ले, कंट्रोल भी तो चाहिए ना, 7th हाउस का वीनस तो लिबिडो दे रहा है। तो शिव का मैं इसको दूंगा, लगने से इसको बचाएगा, तो शिव का कवच मैं इसको दूंगा। शिव के कवच आपको पीडीएफ में बड़े सारे मिल जाएंगे, इसमें से जो आपको सबसे छोटा लगे, जो सबसे राइमिंग लगे, वो आपको रिकमेंड करना चाहिए। टेक्निकली तो पढ़ने वाले को जो सबसे छोटा राइमिंग लगे वो उसको लेना चाहिए, हमारे लगने से क्या होता है। जनरली लोग मुझसे मैसेज करके पूछ लेते हैं, सर ये वाला आइडल ठीक है कि नहीं है। अरे भाई पूजा तेरे को करनी, तेरे को अच्छा लगता है तो ठीक है, मेरे को थोड़ी करनी। तो नेटिव को जो छोटा लगे, पढ़ने में आसान लगे, वो आपको रिकमेंड करना चाहिए। बट आप नेटिव को जानते हो, आपको पता है कितना पढ़ पाएगा कितना नहीं पढ़ पाएगा, अपने हिसाब से आपको छोटा प्यारा सा रिकमेंड कर दोगे। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम वीनस है, वीनस दृष्टि बाधा कर रहा है, और वीनस बाधक भी है, बाधक से भी अपने को बचाव चाहिए। यहाँ पर वीनस जो है कि सात्विक राशि में बैठा है और 7th हाउस में भी बैठा हुआ है, मेरे हिसाब से दुर्गा बेस्ट है, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है ना, मार्स फियर्स है, फियर्स मार्स वीनस के साथ बैठा है, तो दुर्गा है। प्लेनेट का बेसिक फॉर्म ले लेता हूँ, राशि हाउस के हिसाब से फॉर्म बदलता रहता है। तो क्योंकि वीनस बाधक है और बाधक से हमको बचाना है, और वीनस मार्स के साथ बैठा है, तो दूसरा दुर्गा कवच रिकमेंड करूंगा इसको कि दुर्गा का कवच भी करो। दृष्टि बाधा है, इसको मंगल कर रहा है, जिसकी वजह से इसको बुरी दृष्टि लगेगी, है ना, कॉमन सी बात है, बुरी दृष्टि इसको लगेगी, और बुरी दृष्टि से इसको बचाव भी करना है। बचाव आप फिर से कवच से करोगे। यहाँ पर हनुमान और भैरव में मार्स के लिए ले सकता था, हनुमान भैरव पे हम पहले मना कर चुके हैं, तो कार्तिकेय का कवच कर देंगे। एंड लास्टली कर्ज ऑफ रिलेटिव में मरकरी है, मरकरी जो है कि विष्णु को रिप्रेजेंट करेगा, और कर्ज से क्योंकि हमें निकालना है तो स्तुति विष्णु की जो है कि हमें करनी चाहिए। सेकेंडरली क्योंकि रिलेटिव का कर्ज है, कर्ज इसलिए क्योंकि हमने कुछ तो गलत किया होगा, तो क्षमापान स्तोत्र बेटर है कि माफी मांग ले हम उस रिलेटिव से कि जहां जिस भी रूप में होगा आत्मिक तौर पे हमें माफ कर दे। अगर इंसानी शरीर प्राप्त कर लिया होगा तब तो हमें जानता भी नहीं होगा, लेकिन हम तुमसे फिर भी तहे दिल से माफी मांगते हैं। चंद्रमा कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं। मरकरी विष्णु रिप्रेजेंट करेगा, विष्णु की स्तुति यानी विष्णु का अपराध क्षमापान, ये 2 चीजें करनी चाहिए, है ना। इस हिसाब से बेसिकली हम रेमेडी को निकालेंगे। ठीक है। बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ने में नहीं है अच्छा, अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, सरस्वती का आप रेमेडी दे सकोगे, दूसरा आप कार्तिकेय का प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र होता है, तो कार्तिकेय का भी दूसरा आप रेमेडी दे सकोगे। तीसरा नॉलेज हनुमान भी देते हैं, तो हनुमान पे आप जो है कि रेमेडी दे सकोगे। शिव जो है कि वो ज्ञान का अधिष्ठाता है, शिव के ऊपर आप रेमेडी दे सकते हो। गुरु जो है
वो भी ज्ञान के अधिष्ठाता है, गुरु से रिलेटेड रेमेडी आप दे सकते हो, इसी से रिलेटेड रेमेडी आप दे सकते हो। अब आते हैं प्लैनेट पे। बहुत बार आपको डीटी चेंज करना पड़े, कृष्ण का मंत्र देने से बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, देखो ये मैं कह नहीं सकता इस बात को, है ना, आप कुछ बात को समझो। बहुत बार लोग मुझसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो सर ये मंत्र करना बंद कर दें क्या? मैं कैसे कह सकता हूँ? कमेंट मारना, इस पे कोई भी कमेंट करना पाप करने के बराबर है, कहा तो कुछ नहीं जा सकता इस पे। तो पाप ना करते हुए कृष्ण का मंत्र करके भी बुद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन दैट्स नॉट द वे टू डू इट। इनमें से किसी का मंत्र कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 7 प्लेनेट है, सूर्य शिव से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। मून को यहां पर हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? मून को सरस्वती से कनेक्ट करके रखते हैं। मार्स हमारा कार्तिकेय और हनुमान दोनों से कनेक्ट हो जाएंगे। मरकरी को इसे यहाँ पर गुरु से कनेक्ट करना पड़ेगा। जुपिटर जो है कि हमारा शिव से कनेक्ट होंगे। वीनस सरस्वती से भी कनेक्ट होगा और गुरु से भी कनेक्ट हो जाएगा, जुपिटर भी गुरु से कनेक्ट होगा ही। सैटर्न यहाँ पर शिव से भी कनेक्ट हो जाएगा, हनुमान से भी कनेक्ट हो जाएगा। राहु सरस्वती से कनेक्टेड होगा और केतु जो है हनुमान से कनेक्टेड होगा, है ना। तो हमने प्लेनेट के नेचर के हिसाब से, डिटी के नेचर के हिसाब से एक कनेक्शन अपना बढ़िया से बना लिया है नॉलेज के हिसाब से। जो प्लेनेट 5th हाउस को 5th लॉर्ड को एफ्लिक्टेड करेगा, उससे रिलेटेड हनुमान का मंत्र दे सकते हैं, शिव का मंत्र दे सकते हैं। खास करके पंचाक्षरी जो शिव का है, नमः शिवाय, नॉलेज के लिए बेस्ट है। हनुमान का तब कुछ भी दे दो, हनुमान वैसे भी नॉलेज का देवता है। गुरु का भी आप कुछ दे सकते हो, कार्तिकेय का प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्रम होता है। सरस्वती के तो कोई भी उपाय दे सकते हो, सरस्वती बेसिकली नॉलेज की ही देवी है ही, है ना। इसमें से आप जो है कि कुछ भी दे सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। जस्ट अ सेकंड। ठीक है जी, ये तो हो गया ज्ञान बात। सर मरकरी के लिए हम गणेश जी के मंत्र भी दे सकते हैं? हाँ मैडम, गणेश जी की, जी। ये भी बढ़िया बात आपने कही। गणेश जी भी बुद्धि तो विद्या के देवता है, भूल गया मैं। केतु के लिए सर भी गणेश जैसे, ले सकते हैं। हाँ जी, सर जैसे अब 5th हाउस में आपने एजुकेशन के लिए बोला, तो पहले तो हमने प्लैनेट्स देखे हैं। अगर वहां प्लैनेट्स ना हो तो फिर राशि के अकॉर्डिंग उनको मैडम कर प्लेनेट सकते नहीं हैं। है तो प्रॉब्लम क्यों होगी एजुकेशन में फिर? सपोज करो उसका लॉर्ड सर डेबिलिटेटेड हो ना जाता है मैडम, मैं सपोज तो या करता ही नहीं। एफ्लिक्ट हो लॉर्ड जाता है। डेबिलिटेटेड है तो लॉर्ड तो प्लेनेट ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर लॉर्ड तो प्लेनेट होगा ना मैडम। लॉर्ड डेबिलिटेटेड, लॉर्ड प्लेनेट है, लॉर्ड का रेमेडी दे दिया। हाँ, लॉर्ड का भी। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ संजय जी, हाइग्रीव का मंत्र जो है कि हाइग्रीव भी जो है कि केतु डिपार्टमेंट में आएगा और जो है कि मरकरी डिपार्टमेंट में आएगा, है ना। केतु मरकरी डिपार्टमेंट में हाइग्रीव भी आ जाएगा। ये हाइग्रीव का भी मंत्र डाला हुआ है, दिमाग से भर जाती है बातें, है ना। आप इस पूरी लिस्ट में से देख लोगे नॉलेज के लिए किस किस को रिकमेंड किया हुआ है। ऐसे ही जो है कि किसी भी विषय में निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज का अगर मैं उदाहरण लूं, तो मैरिज के लिए तो टेक्निकली किसी भी गॉड को प्लीज किया जा सकता है। बेसिकली दुर्गा मैरिज में बहुत अच्छा काम करती हैं, शिव भी मैरिज में ठीक ठाक काम करते हैं, कृष्ण भी मैरिज में जो है कि अच्छा काम कर लेते हैं।
ये तो इन तीनों डीटी में से कोई भी डीटी ऐसे नारायण भी चूज किया जा सकता है, इसमें से कोई भी डीटी आप चूज कर सकते हैं। डीटी के चूज चूज करने का जो प्रोसेस है वो तो अब तक आप समझ ही चुके हैं ना। इस हिसाब से रेमेडी रिकमेंड करनी है और जो है कि रेमेडी बतानी। तो छोटी छोटी बातें आपको और बताता चलूं। शिव के लिए बाणलिंग होता है, शिव का जो रिप्रेजेंटेटिव है बाणलिंग होता है, इसको नर्मदेश्वर भी कहते हैं। नर्मदा नदी की तलहटी में आपको मिलेगा, इसको घर में रख करके इसका पूजन किया जा सकता है ना। बेलपत्र चढ़ाते हैं जो भी शिव को देते हैं, मतलब शिव के लिए बाणलिंग नर्मदेश्वर लिंग का शिवलिंग बना करके रखते हैं। इसके अलावा मरकरी का पारद का शिवलिंग भी घर में रखा जा सकता है, ये तो आप जानते ही हो। विष्णु के लिए शालिग्राम रखते हैं, है ना, नेपाल में गंडकी नदी से प्राप्त होता है। गणेश के लिए क्या करेंगे? सोनभद्र का एक शिला होती है ना, सोनभद्र स्टोन। सोनभद्र नदी है बिहार में, वहां से मिलता है। इसको जो है कि स्टैब्लिश करना चाहिए। इसके साथ में देवी जो है, देवी के लिए क्या करेंगे? तो स्वर्णमुखी करके एक शिला होती है, पत्थर होता है ना, पत्थर नेम स्वर्णमुखी रेखा शिला है, आंध्र प्रदेश में कहीं पर प्राप्त होता है। तो उसको जो है कि घर में स्टैब्लिश किया जा सकता है, वर्शिप किया जा सकता है। देवी का मूर्ति ही समझ लेंगे इसको, है ना। इसमें क्या है, जैसे बहुत बार बहुत गॉडेसेस की मूर्तियां मिलती नहीं है, तो फॉर्म का पूजा करना बेटर सुटेबल है। और सूर्य के लिए जो है कि क्रिस्टल तंजावुर में मिलता है, विशेष सूर्य क्रिस्टल्स मिलते हैं, उसको सूर्य के लिए जो है कि विशेष तौर पे पूजा किया जा सकता है। ठीक है जी। वर्शिप प्रोसीजर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भूत शुद्धि। 3-4 दिन से आर्टिकल लिखने का मन कर रहा है, तो इसमें मैं आर्टिकल लिख दूंगा। तो आप पूजा करेंगे, भूत शुद्धि से शुरू करेंगे। पहले गुरु का मंत्र करेंगे, फिर गणेश का मंत्र करेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले कवच करेंगे। कवच के बाद 108 या 1008 नेम्स में से आपको जो भी करना है वो करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो मंत्र चैंटिंग करेंगे, नहीं चाहें तो मंत्र चैंटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद आप स्तोत्र पढ़ेंगे। मंत्र चैंटिंग का प्रोसेस स्किप भी किया जा सकता है अगर मंत्र चैंटिंग नहीं कर रहा है। तो इसके बाद व्यक्ति स्तोत्र पढ़ेगा, और स्तोत्र पढ़ने के बाद अंततः अपराध क्षमापान जो है कि वो आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भूत शुद्धि का जो प्रोसेस है, वो भूत शुद्धि का प्रोसेस अब दोबारा करेंगे। इसमें आपका वर्शिप डन हो गया है। इसमें दीप वीप जलाने वगैरह का जो प्रोसेस है, ये भूत शुद्धि के पहले भी किया जा सकता है, नहीं तो फिर भूत शुद्धि करने के बाद। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि भूत शुद्धि करने के बाद जो है कि दीप वगैरह जलाने का प्रोसेस आप करो, पहले कर लिया जाना चाहिए। ठीक है। बाकी पूजा प्रोसीजर बहुत इलेबोरेट चीज है, अब जब मंत्र में कोर्स करेंगे तब पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। भूत शुद्धि पे जो है क्या विल राइट। इसमें एक छोटी सी बात बस ये है कि मंत्र चैंटिंग आप करो या ना करो, शुरुआत में कवच और उसके बाद 108 नाम आपको करना ही है। 108 नाम की जगह पे 1008 नाम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करने ही करने हैं कवच और 1008 नाम। क्षमापान आपको अंत में मिलेगा तो आप कर पाओगे, नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाओगे, उसमें तो कोई मतलब नहीं है। स्तोत्र जहां पर मैंने आपको स्तोत्र बोला है वहीं पर स्तोत्र रखने, संख्या बढ़ाई जा सकती है, बट बाकी ऑर्डर सेम रहेगा, है ना। एक कवच, एक 1008 नेम या 108 नेम्स करने ही करने हैं। उसके बाद आपने कवच करना है, वो कवच आप 2 करो या 20 करो, कोई फर्क नहीं। ठीक है। इसमें एक बात और भी है, कवच आप एक डीटी का करोगे, 1000 नेम्स आप 1000 या 108 नेम्स आप एक डीटी के करोगे। बाद में जो आप स्तोत्र पाठ करोगे वो आप कितने भी डीटी का कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में आप अपराध क्षमापान करोगे। और ये जो कवच और शतनाम 108 नेम्स जो होंगे, ये इष्ट देवता के होंगे, जो आपका प्राइम गॉड है, जिसको आप हमेशा वर्शिप करते हो। बीच में किसी की भी स्तुति पढ़ी जा सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुरु के वर्शिप में गुरु का मंत्र ना हो तो गुरु के बहुत सारे स्तोत्र हैं, उसमें से कुछ भी किया जा सकता है। अगर किसी को रमन महर्षि से एफिनिटी हो तो रमन महर्षि का स्तोत्र, रामकृष्ण परमहंस से हो तो रामकृष्ण परमहंस का स्तोत्र,
चैतन्य महाप्रभु से होता है, चैतन्य महाप्रभु का स्तोत्र कर सकता है। गणेश के मंत्र में कोई भी गणेश का मंत्र आप ले सकते हैं, नहीं तो गणेश की स्तुति ले सकते हैं गणेश वर्शिप की जगह पे, है ना। ये तो आपके पास दो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। पुराणों में बहुत लंबा लंबा जिक्र है कि शिव की शादी इसलिए टूट गई क्योंकि उन्होंने गणेश का वर्शिप नहीं किया। समुद्र मंथन के दौरान जहर इसलिए निकल गया क्योंकि उन्होंने गणेश का वर्शिप नहीं किया। तो गणेश का वर्शिप जरूर करना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम जो है कि हो जाती है। ठीक है जी, इतना ही। मैं सोचता हूँ कि इतना इतिश्री है टॉपिक की, तो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो सर इसमें एक दे देते हैं मैडम। सर जैसे हमने गणेश जी के मंत्र किए, जी, तो उसके साथ ही हनुमान जी के मंत्र भी कर सकते हैं, या एक डेटी का ही एक टाइम पे मंत्र करना चाहिए? कितना भी कर सकते किसी का भी कर हैं, हाँ सकते हैं? किसी का। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। जनरली मैं ये समझता हूँ कि दो तीन डीटी का भी साथ में कर सकते हैं। गणेश जी हनुमान जी में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको तो मैं उत्तर हाँ ही बोलूंगा। वैसे सरब का और नरसिंह का इसमें शत्रुता है ऐसा मानते हैं। तो जनरली शरब की पूजा करता हो तो नरसिंह की पूजा ना करे, नरसिंह की पूजा करता हो तो शरब की पूजा ना करे। इसमें जो शरब के साथ में जो है कि पतंगिरा भी शरब की टीम में है, गैंग में है, तो शरब के साथ पतंगिरा तो कर सकता है, लेकिन नरसिंह के साथ शरब या पतंगिरा में से कुछ भी नहीं कर सकता। तो नरसिंह को जो इष्ट मानता हो वो तो शरब और पतंगिरा बिल्कुल ना करे। अगर नरसिंह को कोई इष्ट ना मानता हो, हमारे जैसा आम आदमी हो जो इष्ट किसी और को मानता हो, लेकिन कभी नरसिंह का मंत्र किया हो, बाद में शरब या पतंगिरा कर सकता है, लेकिन जब शरब या पतंगिरा करेगा तब नरसिंह के मंत्र नहीं करेगा। जिन देवताओं में थोड़ी सी शत्रुता है उसमें हल्का सा फॉलो करना चाहिए। शरभ प्रतंगिरा और नरसिंह के सेट में ही ऐसा है, बाकी किसी भी डीटी को साथ में पूजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे सर कोई। ऐसे मेल और फीमेल्स का भी कर सकते हैं इकट्ठा ही? हाँ हाँ मैडम, कोई आराम से। ठीक। उसमें मेल की जगह पर कृष्ण और फीमेल की जगह पर काली भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है सेम ही सेक्स से होना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है गॉड। सर एक आपने बोला था कि किसी के लिए अगर कुछ करना है तो हमने उसको पहले आत्मन लेके हमने उसका प्रॉपर वो करना होता है, हाँ जी हाँ वो जी। प्रोसेस होता है। तो अगर मान लो सपोज जैसे मैं फीमेल में मदर हूँ और अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए भी करना चाहती हूँ, तो उनका पर्टिकुलरली नाम लेके करना है, या ऐसे भी बिना विदाउट नेम भी मैं कर सकती मैडम हूँ सिंपल और कुछ? प्रोसीजर सा बता देता हूँ। मेंटली एक प्लान बना लेते हैं, पहले तो देवता को रिमेम्बर करते हैं कि हे भगवान, है ना, जो भी भगवान है, मैं जो है कि ये पूजा इस पर्सन के लिए जो नाम है वो नाम आप मन में लोगे, इस पर्सन के लिए कर रही हूँ। उसमें आपको राशि नक्षत्र पता है तो आगे आगे राशि नक्षत्र भी ऐड कर दोगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि हे प्रभु, हे शिव, है ना, ये पूजा मैं शुभ मान लो अपने शिष्य या अपने दोस्त अमित के लिए, नवनीत के लिए, जो कि कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसके लिए कर रहा हूं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस पूजा के फलस्वरूप इसको आर्थिक उन्नति प्राप्त हो। ये मेरा संकल्प हो गया, डन। ये हिंदी में कर लिया मैंने, इंग्लिश में भी कर सकता हूँ मैं इसको, संस्कृत में तो विष्णु 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 प्रवर्तमान से वारा कल्पे, वो तो लंबा है, तो उसको किया जा सकता है। तो टेक्निकली जो है कि आप संकल्प कर लेंगे। इसमें एक बात है मैडम, छोटे छोटे जो छोटी जो लेवल की पूजा होती है, जैसे ओम नमः शिवाय वगैरह का जो जाप है ना, ये छोटे मंत्र हैं, ये पूजा करने वाले को पीनांस का फल देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं होती कि दूसरे को ट्रांसफर हो पाए, अनटिल एंड अनलेस की लॉन्ग टाइम तक किया जाए इसको। तो दूसरे को क्विक पावर ट्रांसफर करने के लिए जितना बड़ा प्रयोग होगा उतना बड़ा प्रयोग आपको लेना चाहिए। अगर आप दूसरे को इंस्टेंट रिलीफ देना चाह रहे हो, तो छोटे मंत्र से दूसरे को रिलीफ देना है तो आपको 1 1.5 साल तक करना पड़ेगा, है ना। छोटे मंत्रास बेटर हैं कि खुद के लिए किए जाए, दूसरे के लिए करना है तो बड़ा मंत्र करिए। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर।